بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کیا دیتا ہے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہم اس ویڈیو میں نماز کی فضیلت اور اس کے فائدے دیکھیں گے۔ جو شخص 5 وقتوں کی فرض نمازیں تمام شرطوں کے ساتھ صحیح وقتوں پر پابندی سے ادا کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز وقت پر نماز پڑھنا ہے، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون اور مومن کا نور ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس آدمی کے بیچ سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جب آدمی زمین کے جس حصے پر نماز پڑھنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جب مسلمان 5 وقتوں کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نماز میں کوتاہی یعنی چھوڑنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جنت کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور رکوع سجدے وضو وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح کو نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اگر فرض نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نماز درست نہیں ہوئی تو وہ ناکام ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ جو شخص ہر روز 12 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے یعنی فجر اور عصر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج میں 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ آخر میں اعلان کیا گیا، اے محمد، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، لہٰذا 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ملے گا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، سکھاؤ، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھنے پر انہیں مارو، اور اس عمر میں انہیں الگ الگ بستروں پر سلاؤ۔
फजर की नमाज की फजीलत। सबसे पहले जानते हैं कि फजर की नमाज पढ़ने वाले शख्स को अल्लाह ताला किस किस बरकत फजीलत से नवाजते हैं। लेकिन फजर पढ़ना बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह सुबह में पढ़ा जाता है और लोगों को सुबह में उठा ही नहीं जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरी रातों में मस्जिद की तरफ चलकर जाने वालों को कयामत के दिन पूरी रोशनी की खुशखबरी दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आ गया और उसके दिन भर के कामों में अल्लाह की रहमत होती है। फजर की 2 सुन्नतें दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। जिस शख्स ने फजर की नमाज बाजमात पढ़ ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके घर में बरकत और हर बीमारी और हर परेशानी और रिज़्क की तंगी दूर कर देंगे और उसका चेहरा नूरानी बना देंगे। जोहर की नमाज की फजीलत। रोजाना नमाज़े जोहर के वक्त जहन्नम की आग को भड़काया जाता है। जो भी अहले ईमान ये नमाज अदा करता है, अल्लाह करीम उस बंदे से कयामत के दिन जहन्नम की आग को हराम कर देता है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जोहर से पहले 4 रकात और जोहर के बाद 4 रकात हमेशा पढ़ता रहे तो अल्लाह ताला इस पर जहन्नम की आग हराम कर देता है। जो आदमी नमाज़े जोहर की 4 रकात सुन्नत पढ़ता है तो उसकी फजीलत तहज्जुद नमाज के फजीलत के बराबर है। असर की नमाज की फजीलत। जो शख्स असर की नमाज छोड़ दे उसका नुकसान ऐसा होगा या उसको सदमा या अफसोस ऐसा होगा जैसे कि सारे रिश्तेदार मर गए और पूरा माल व दौलत लुट गया। जो आदमी असर की नमाज अदा करता है उसको अल्लाह ताला अच्छी सेहत अता फरमाते हैं, और जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसका सब कुछ लुट गया और वो बर्बाद हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी यानी फजर और असर की, वह जन्नत में दाखिल होगा। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और फिर लोगों की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, यह नमाज तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज की गई थी मगर उन्होंने इसको जाया कर दिया, लिहाजा सुनो, जो इसको पाबंदी से पढ़ता रहेगा उसको दोहरा सवाब मिलेगा। एक रिवायत में है कि असर की नमाज के वक्त फरिश्तों की ड्यूटी बदलती है। दिन के फरिश्ते आसमान की तरफ जाते हैं और रात के फरिश्ते वापस आते हैं। जब दिन के फरिश्ते वापस आसमान की तरफ जाते हैं तो अल्लाह ताला सब कुछ जानने के बावजूद फरिश्तों से मालूम करते हैं, मेरे बंदे क्या कर रहे थे। तब फरिश्ते तारीफ करते हैं, ए अल्लाह, आपके बंदे नमाज में मशगूल थे। जुम्मे के दिन असर से मगरिब के बीच में मांगी गई दुआ कबूल होती है, तो इस लिहाज से आप असर से मगरिब के दरमियान तिलावत किया करें और इसके बाद दुआएं मांगा करें। आपकी दुआएं इंशाअल्लाह कबूल होगी। मगरिब की नमाज की फजीलत। गंदे जिन्नात, हवाई असरात और शैतानों से हिफाजत। बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें आका का फरमान है, लोगों, जब सूरज गुरूब होता है यानी डूबता है तो उस वक्त शैतान और तमाम शैतानी चीजें बाहर निकल आती है। अगर तुम लोग उनसे बचना चाहते हो तो उस वक्त मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उस नमाज के जरिए तमाम सरकश शयातीन और गंदे जिन्नात वगैरह से तुम्हारी हिफाजत फरमा देंगे। अगर कोई शख्स मगरिब की नमाज पढ़कर सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी, और अगर आपकी कोई हाजत है तो वह भी अल्लाह सुब्हानो व तआला कबूल फरमाएगा। मगरिब की नमाज पढ़ने से आपकी असर से मगरिब के दरमियान किए गए गुनाह माफ हो जाएंगे। जो शख्स मगरिब की नमाज पढ़ेगा
तो वह अपनी औलाद से नफा हासिल करने वाला होगा और उसके औलाद से उसको नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आदमी मगरिब की नमाज अदा करेगा तो उसको नेक औलादें मिलेंगी। इशा की नमाज की फजीलत। जिस आदमी ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली और जिसने फजर की नमाज भी बाजमात पढ़ ली, वो बंदा ऐसा है जैसे उसने सारी रात नमाज पढ़ी। इशा की नमाज लंबी होती है जिससे इसको पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन इसकी फजीलत बहुत है क्योंकि अल्लाह को लंबी रकातें पसंद है। दोज़ख की आग से छुटकारा। इशा की नमाज की फजीलत बहुत ज्यादा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मस्जिद में जमात के साथ 40 रातों तक इशा की नमाज पढ़ ले और उसकी पहली रकात भी न छूटने पाए तो अल्लाह ताला उस शख्स के लिए दोज़ख की आग से आजादी लिख देता है। तहज्जुद की नमाज की फजीलत। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की नमाज के बाद सबसे ज्यादा अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है, इसीलिए हमें तहज्जुद की नमाज अदा करना चाहिए क्योंकि इसका मर्तबा काफी आला है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात 4/3 पूरी होने के बाद अल्लाह ताला आसमाने दुनिया में नाजिल होता है और कहता है, क्या कोई बंदा है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं कबूल करूं? क्या कोई बंदा है जो मुझसे माफी मांगे और मैं माफ करूं? रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो क्योंकि तुमसे पहले पिछली उम्मतों के नेक लोग भी इसको पढ़ते थे और ये नमाज तुम्हारे लिए अल्लाह से करीब होने का सबब है और गुनाहों का कफारा करने वाली है और गुनाह से रोकने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मर्द अपनी बीवी को जगाए और दोनों तहज्जुद की नमाज अदा कर ले तो इन दोनों का नाम अल्लाह की याद से खास ताल्लुक रखने वालों में लिख दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह एक के बदले 100 या उससे ज्यादा देता है। जो शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इसको अपनी रहमत दे दी और जब अल्लाह की रहमत मिल जाती है तो सारे काम वो चाहे दुनिया के हो या आखिरत के बन जाते हैं और अल्लाह राजी हो जाता है।